Hello dear students, good morning to all. I hope you all are safe and healthy at your home. So today we are going to start the new lesson of biology, that is lesson number 8, how do the organisms reproduce. Now as you have already known that some chapters have been deleted by the CBSE due to the pandemic COVID-19. So chapter number 7, control and coordination, has been deleted. We will not be going to do that. Obviously I am going to explain that chapter a little bit. Generally मैं आपको थोड़ा बहुत explain कर दूंगी chapter, that what is in that chapter, but the questions will not come from that chapter in the exams. So now we are starting lesson number 8, how do the organisms reproduce. In this video, I will give you the general introduction of the lesson, that what is reproduction, why it is needed, and what are the various modes of reproduction and the differences between those modes. Okay, from tomorrow onwards, I will going to start the chapter in detail. So first of all, what is reproduction? And I know that this chapter is very much interesting and you all are very curious to learn about this chapter. Mostly the human reproductive part. Human reproductive part, कैसे आपकी human body reproduce करती है, उसके बारे में हम इस chapter में detail में पढ़ेंगे. So please watch the videos carefully and try to understand the chapter. Okay, so where we are on the definition of reproduction. What do you mean by reproduction? Production means to produce something, to make something, and means again. So to make something again, that is reproduction in layman language. Generally किसी चीज का दोबारा बनना. तो reproduction means the production of the new generation, or we can say new offsprings. ऑफस्प्रिंग्स, प्रोजेनी, ये जितने भी टर्म हैं ये रिलेटेड हैं आपके यंग वंस से. मैं प्रोजेनी की बात कर रही हूँ, अगर प्रोजेनी बोल रही हूँ या फिर ऑफस्प्रिंग्स बोल रही हूँ, तो दैट मीन्स दे आर द न्यू वंस. मीन्स ऑफस्प्रिंग्स है, प्रोजेनी है, तो इसका मतलब वो आपकी जो पेरेंटल जनरेशन है उनके बेबीज के बारे में बात हो रही है. तो reproduction is the production of new offsprings or new progeny or the new ones of the same kind. Same kind means humans है तो humans को ही reproduce करेंगे, cats है तो cats को ही reproduce करेंगे, dogs है तो dogs को ही reproduce करेंगे. ऐसे तो नहीं है dogs cats को birth देती हैं और cat जो है वो mouse को birth देते हैं, ऐसा नहीं होता. तो अपने ही जैसे species को produce करना, दोबारा प्रोड्यूस करना, दैट इज द रिप्रोडक्शन. सो लेट्स सी एट द ब्लैक बोर्ड. रिप्रोडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स. ऑब्वियसली जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एग्जिस्टिंग मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स अभी हैं उनसे जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम स्पीशीज. सेम स्पीशीज मैंने आपको बता दी, ह्यूमन की स्पीशीज है तो ह्यूमंस ही रिप्रोड्यूस होंगे. ऐसा नहीं कि ह्यूमंस किसी कैट को बर्थ दे रहे हैं या डॉग को बर्थ दे रहे हैं. तो रिप्रोडक्शन क्या हुआ, ऑफ न्यू जनरेशन का प्रोड्यूस होना जो कि सेम स्पीशीज की है. ओके, नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन की क्या नीड है? ऑब्वियसली द आंसर इज वेरी सिंपल. आप लोग क्या बोलेंगे, जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए. दैट इज अ वेरी सिंपल आंसर, मीन्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज. सो द नीड फॉर रिप्रोडक्शन, फर्स्ट इज इट एंश्योर्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ या कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज. स्पीशीज, कोई भी स्पीशीज है, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो वो स्पीशीज आगे कैसे कॉन्टिन्यू करेगी. रिप्रोडक्शन नहीं हुई तो स्पीशीज वहीं खत्म. जितने ऑर्गेनिजम्स अभी हैं उनमें अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वो स्पीशीज वहीं एंड हो गई. सो टू कंटिन्यू दैट प्रोसेस, कंटिन्यू द जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऑफ द स्पीशीज का कॉन्टिन्यूएशन, इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है ताकि स्पीशीज एग्जिस्ट रहे इस अर्थ पर. सेकेंड, इट इंक्रीजेस पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज. ऑब्वियसली जब रिप्रोडक्शन होगा तो किसी भी स्पीशीज की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी.
Third is it provides variations which are favorable from one generation to another generation. Now what are variations? Variations का क्या मतलब है? Variations are the differences. Now the genetic material of the human beings is a DNA. DNA that means deoxyribonucleic acid. DNA जेनेटिक मटेरियल है, सब जानते हैं ऑब्वियसली, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं तो लिटिल बिट नॉलेज यू हैव अबाउट द डीएनए. डीएनए रेप्लिकेटिंग मटेरियल है जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आता है, एंड फ्रॉम दैट डीएनए ओनली वी गेट द सिमिलैरिटीज ऑफ आवर पेरेंट्स. कोई भी न्यू बेबी जब बॉर्न होता है तो सबसे पहले उसको देखकर अरे इसकी आईज तो मम्मा पर गई हैं, इसकी नोज बिल्कुल पापा जैसी है, ऐसे बोला जाता है. तो ये कैसे होता है? बिकॉज ऑफ द डीएनए. क्योंकि आईज का जो डीएनए जो आईज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो मदर से सिमिलैरिटीज हैं मदर के उससे, तो दैट मीन्स जो वहाँ आईज के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स है डीएनए में, दैट हैज कम फ्रॉम द मदर. तो डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है. हेरिडिटरी मटेरियल मीन्स हेरिडिटरी है जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, पेरेंट्स टू द अदर जनरेशन. तो पेरेंट्स से डीएनए पास हो रहा है. अब उसमें जब डीएनए पास होता है, सबका डीएनए सिमिलर नहीं होता, ये आपको पता ही है, चाहे मदर हो चाहे फादर हो. ऑब्वियसली देयर विल बी अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन द डीएनए ऑफ यू एंड योर पेरेंट्स. आपका जो डीएनए आपके पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मैच करेगा, 98-99%, बट स्टिल 1% देयर विल बी द वेरिएशन. अगर बिल्कुल ही वेरिएशन नहीं होगा तो दैट मीन्स यू आर द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द पेरेंट. आप बिल्कुल एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स से सिमिलर करेंगे. आपका फेस भी, आपकी जो बॉडी के कलर है, हेयर का कलर है, वो एग्जैक्टली सिमिलर होगा आपके पेरेंट्स से. तो अब जब ये पर ऐसा नहीं होता, जनरली कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते हैं, हम एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं होते अपने मदर और फादर के. तो ये वेरिएशन की वजह से होता है. डीएनए जब रेप्लिकेट होता है, डीएनए कॉपी मैकेनिज्म है, डीएनए पेरेंट्स का कॉपी होकर हमारे अंदर आता है. तो जब ये डीएनए कॉपी हो रहा होता है तो उसमें कुछ ना कुछ एरर्स आ जाती हैं डीएनए कॉपिंग की वजह से, जिनकी वजह से वेरिएशन स्पीशीज में देखने के लिए मिलता है. तो अब रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वेरिएशन ही नहीं आएगा स्पीशीज में. और वेरिएशन की बहुत इंपॉर्टेंस है. क्यों इंपॉर्टेंस है? लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. सपोज एक स्पीशीज है, कोई भी एक पॉपुलेशन किसी एरिया में एग्जिस्ट कर रही है, वो उस एरिया के लिए अडेप्टेड है, स्वीटेबली आराम से वहाँ पर रह रही है, उसका वेदर उसके लिए स्वीटेबल है, उसके जो फूड है वहाँ पर अवेलेबल है, शेल्टर उसको वहाँ प्रोवाइडेड है, सब उसकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उस एरिया से पूरी हो रही है. नाउ इफ ड्यू टू अ नेचुरल कैलामिटी, एनवायरमेंट है, कुछ भी हो सकता है भाई, बाढ़ आ सकती है या कुछ हो सकता है, कोई भी नेचुरल कैलामिटी की वजह से अगर वहाँ पर कुछ चेंजेस हो गए, मीन्स एक्वेटिक लाइफ के बारे में बात करें, कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो एक्वेटिक है, पानी में रह रही है, कुछ चेंजेस होने की वजह से वो जो पानी में जो रह रही है, सुइटेबल है वो उसके लिए वो वाटर, पर अगर उस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो जो वो स्पीशीज वाटर में रह रही है वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी. क्यों? क्योंकि वो अडेप्टेड ही नहीं है उस टेम्परेचर को टॉलरेट करने के लिए. बट ड्यू टू दिस वेरिएशन, मान लीजिए वेरिएशन की वजह से जो जीन्स हैं, जीन्स में कुछ वेरिएशन हुआ है जिससे उस स्पीशीज के कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसे जीन्स आ गए हैं जो है हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं. तो उससे क्या होगा, उन जो जीन्स हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिस भी ऑर्गेनिजम्स में वो जीन्स प्रेजेंट होंगे वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाएगा, और बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे विल गेट पैरिश्ड, वो पैरिश हो जाएंगे, मीन्स एलिमिनेट हो जाएंगे या उनकी डेथ हो जाएगी. तो इस वेरिएशन की वजह से क्या हुआ, स्पीशीज के कुछ ऑर्गेनिजम्स तो बच गए, अब वो ऑर्गेनिजम्स आपस में रिप्रोड्यूस करके और फर्दर उस स्पीशीज को बढ़ा सकते हैं. पर मान लीजिए एक भी ऑर्गेनिज्म नहीं
नहीं बचा अगर स्पीशीज का, देन हाउ विल द रिप्रोडक्शन अकर, रिप्रोडक्शन ही नहीं होगी और वो स्पीशीज पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ वेरिएशन का फायदा होता है, दिस इज द एडवांटेज ऑफ द वेरिएशन। और ये वेरिएशन किससे आता है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से ही आता है। तो इसलिए ये भी एक रिप्रोडक्शन की नीड है, जरूरी है, या हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंस है रिप्रोडक्शन का। वेरिएशन विच आर फेवरेबल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जनरेशन टू जनरेशन ये वेरिएशंस होते हैं और उन वेरिएशन की वजह से कुछ ऐसे जीन्स आ जाते हैं जो प्रीवियस जनरेशन से डिफरेंट है और उनका फायदा उनको कहीं ना कहीं हो सकता है। सो दिस इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, नीड फॉर रिप्रोडक्शन। Now coming to the modes of reproduction. Modes of reproduction means जितने भी living organisms हैं they reproduce only by two ways, that is asexual and sexual. Two types के reproduction होते हैं, asexual reproduction and sexual reproduction. Now what is the difference between them? The basic difference is asexual reproduction involves only single parent. जो सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी नीड बोथ द पेरेंट्स, वन मेल एंड वन फीमेल, और उनका फ्यूजन होता है जिससे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस फ्यूजन होता है, फिर उससे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं। दैट वी विल स्टडी इन डिटेल। ह्यूमन बींग्स में हमें sexual reproduction in flowering plants as well as in human beings we have to study in detail. And in asexual reproduction there are various methods by which organisms reproduce asexually, that we will going to study tomorrow in detail. Tomorrow मैं आपको बताऊंगी asexual reproduction start करूंगी, तो जो भी उसके methods हैं like fission, fragmentation, regeneration, budding, spore formation, vegetative propagation. These are the methods that is included in the asexual reproduction, and how this method occurs that I will tell you tomorrow. Now today I will tell you the differences between asexual and sexual reproduction. Now let's study about the differences between sexual reproduction and asexual reproduction. As I have told you earlier also that asexual reproduction involves only one parent, whereas two parents, one male and one female is required in sexual reproduction. So the first point is, and this is the basic difference between the two types of reproduction. Single individual will give rise to new individual. जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है वो सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल से हो रहा है, एक ही इंडिविजुअल न्यू इंडिविजुअल को पैदा कर रहा है या बर्थ कर दे रहा है। टू इंडिविजुअल्स, वन मेल एंड वन फीमेल आर नीडेड टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू इंडिविजुअल्स आर नीडेड, वन मेल एंड वन फीमेल, बाय विच अ न्यू इंडिविजुअल इज formed. Second difference is gametes are not formed in asexual reproduction, whereas gametes are formed in sexual reproduction. Now what are gametes? Gametes are the cells that is responsible for the reproduction. They are also known as the sex cells. सेक्स सेल्स, अब सेक्स मेल और फीमेल के अलग अलग हैं, तो मेल के अलग होते हैं गैमीट्स, फीमेल के अलग होते हैं सेक्स सेल्स जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो गैमीट्स को हम सेक्स सेल्स भी बोल सकते हैं। दैट ऑब्वियसली वी विल गोइंग टू स्टडी इन डिटेल व्हेन वी विल डू दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें हम गैमीट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो अब यहाँ पर क्योंकि सिर्फ सिंगल पेरेंट ही है, आइदर मेल और आइदर फीमेल, तो गैमीट्स या सेक्स सेल की ज़रूरत ही नहीं है, तो गैमीट्स फॉर्म नहीं होते। बट एज टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दोनों के सेक्स सेल्स में फ्यूजन होता है, दैट विल गिव राइज टू जाइगोट। तो इसलिए यहाँ पर गैमीट्स फॉर्म होते हैं because two parents are there, so gametes are formed in this. ये अभी क्लियर नहीं हो रहा है आपको, तो this will get clear when we will study about sexual reproduction. Third point is new individual is identical to parent, and here new individual is different from parent. अब sexual reproduction में जो new individual है वो different है parent से। क्यों different है? क्योंकि
दो पेरेंट्स हैं, मदर और फादर, और दोनों का डीएनए कंबाइन हो रहा है, तो कुछ मदर में से आ रहा है, कुछ फादर में से आ रहा है, तो दोनों के हमारे पास डीएनए कंबाइन होकर आ रहे हैं, तो वेरिएशंस होते हैं, तो इस वजह से आइडेंटिकल नहीं है, हम सिमिलर नहीं हैं। बट क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट है, तो जो इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है दैट विल बी सिमिलर टू द पेरेंट। पेरेंट से सिमिलर होगा क्योंकि जैसे एक ही इंडिविजुअल बर्थ दे रहा है ना, उसमें तो दो होंगे, तभी तो डिफरेंसेस होंगे, तभी वेरिएशंस आएंगे। सो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द न्यू इंडिविजुअल फॉर्म इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट। Fourth point is extremely useful as means of rapid multiplication, and sexual reproduction is useful to generate more variations in species. अब क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट होता है, तो फटाफट से मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर हमें रैपिडली कुछ चीज़ ग्रो करनी है, रैपिड रिप्रोडक्शन करना है, तो वी विल यूज दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एडवांटेज है वो यही है कि इसमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक लंबा प्रोसेस है, पहले दो सेक्स सेल्स आएंगे, उनका फ्यूजन होगा, फिर जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट डेवलप होगा धीरे धीरे, तो बहुत एक लंबा प्रोसेस है। तो इसलिए जब हम रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, क्योंकि एक ही पेरेंट है, कुछ झंझट नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, फटाफट से रिप्रोडक्शन हो जाता है। Last point is adopted by lower organisms, and here sexual reproduction is adopted by higher organisms. By lower organisms, it means that the organisms that have the simple body structures, जिनके simple body structures है, या mostly unicellular organisms में, not always I am saying, but mostly in unicellular organisms में asexual reproduction होता है, like बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गए, जो simple organisms है, जिनके जो body structure है या body का जो design है वो simple है। पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट अकर्स इन हायर ऑर्गेनिजम्स दैट हैव द कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर, जिनका जो बॉडी डिजाइन है, बॉडी स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स है, उनमें उन ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लाइक इन ऑल द एनिमल्स लाइक डॉग, कैट्स, टाइगर, बर्ड्स, इन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ह्यूमन बींग्स, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, humans also reproduce by the mode of sexual reproduction. So these are the basic differences between two types of reproduction, sexual and asexual reproduction. Tomorrow I will start the asexual reproduction in detail, and we will study all the methods of asexual reproduction with diagrams. Asexual reproduction कैसे होता है ये मैं आपको कल वीडियो में बताऊंगी. So till then, have a good day, and please do study the chapter, do read the chapter. Thank you very much.